Assalamu alaikum everyone. I hope so that you would be fine. And coming back again to the online classes. Uh, the chapter that this time I have selected is the chapter 5. And what I have added in this new online lectures and classes is my face. So from now on, I'll try my level best to be as much as communicative using the physiological expressions as well as the verbal expressions. So, the chapter 5 from the Discovery Computer 2010 is a part of our next lectures, and these lectures would be 3 or 4 lectures. And from the name of the chapter, it is very clear that it is input. The input in the input chapter, what we are going to learn is define input and difference among a program, command, and user force. There are different types of inputs, and we are going to differentiate between what program is, what the command is, and what the user response is. Then what we are going to do next is identify the keys and buttons commonly found on the desktop computer keyboard. Going to learn about the keyboards and describe how keyboards for mobile computers and devices different from computer keyboards. That what basically is the difference between the keyboards that we are using on the desktop computers and on the laptops, between the difference between the keyboards on our mobile phones and other communication devices. Along with, we are going to learn about the different types of mouses, the mouse that we use for the cursors for the input purposes. Along with, describe various types of touch screens and explains how touch sensitive pad works, various type of pen inputs, the smartphone inputs, and summarizing the various game controllers. Along with that, we are going to describe in the further coming lectures regarding what resolution is, how does it affects on the digital communication, how does a digital camera work, why do we need the voice recognitions, webcams, and video conferencing softwares and inputs, discuss the various scanners and reading devices along with summarizing the biometric devices, and we will discuss some old terms such as DVD kiosks and teller machines, automated teller machines. And what about the physical inputs and inputs for those people who cannot use the typical inputs, for example, like the physically challenged peoples. So starting with the chapter, the very first thing is that what is actually the input. Input is any data and instruction enter into the memory of the computer. If you can recall the processor, the working of the processor from the previous chapters, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोसेसर को कोई भी वर्किंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, डाटा की ज़रूरत होती है और इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है. जो डाटा होता है, बताया था मैंने, वो कहाँ से आता है उसको, वो डाटा उसको बेसिकली फ्रॉम इट्स स्टोरेज मेमोरीज या सेकेंडरी मेमोरी वहाँ से आता है, या उसके पास वो आता है इनपुट डिवाइसेस से. तो वो जो बेसिकली हमारा डाटा होता है जो कि हमें सेकेंडरी डिवाइस से सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस से आ रहा है या इनपुट से आ रहा होता है, वो हमारी इनपुट कहला रही होती है. और इंस्ट्रक्शंस कि वो डाटा एग्जीक्यूट किस तरह करना है प्रोसेसर ने. तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी होती हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. और वो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास एज एन इनपुट आ रही होती हैं फ्रॉम सॉफ्टवेयर्स, जो कि सॉफ्टवेयर्स हम लोगों ने इंस्टॉल किए होते हैं, जो कि हमारे हार्डवेयर्स को या हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्क करने में मदद दे रहे होते हैं. तो डाटा क्या होता है? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, number, images, audios, and videos. All these things basically are our data, and you are very much well aware of what data is. Once data is in the memory, the computer interprets and executes the instructions to process the data, and that what have I told you कि input devices से उसने क्या लिया, डाटा लिया, इंस्ट्रक्शंस ली उसने कि उनको किस तरह एग्जीक्यूट करना है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया. सो व्हाट बेसिकली इज एन इनपुट. इनपुट की डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं हमारे पास. द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ प्रोग्राम. A program is a series of related instructions that tells a computer what task to perform and how to perform. Obviously हम लोगों ने बहुत सारे programs run करने होते हैं. वो programs जो run होते हैं मसलन अभी मैं एक recording का program run कर रहा हूँ, तो इसमें recording कैसे हो रही है कंप्यूटर को ये किसने बताना है?
ये बताना है इस प्रोग्राम ने कि वीडियो इमेज कहाँ से लेना है, इसको प्रोसेस किस तरह करना है, इसको स्टोर किस तरह करना है, इसकी इनकोडिंग डिकोडिंग किस तरह करनी है। तो ये बेसिकली जो तमाम चीज़ें होती हैं ये एक प्रोग्राम बता रहा होता है, लेकिन ये इनपुट होती है। देन प्रोग्राम रिस्पॉन्स टू कमांड्स दैट अ यूज़र इशूज़। अब एक तो प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है, जिसे हम लोग कह देते हैं बैक एंड सेटिंग्स। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो कि यूज़र डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं कह देता हूँ ये MP4 में हो, नहीं ये MKV में हो, ये डिफरेंट इसकी एक्सटेंशंस होती हैं, हम डिफरेंट एक्सटेंशंस के अंदर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उस लिहाज से जो रिकॉर्डिंग होती है वो जो मैं इंस्ट्रक्शंस बता रहा होता हूँ, जो मेरा रिस्पॉन्स होता है, जो मेरी इनपुट होती है, जो कि यूज़र से रिलेटेड होती है, वो यूज़र रिस्पॉन्स में आ रही होती है, और जो प्रोग्राम्स उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं वो प्रोग्राम्स की इनपुट आ रही होती है। यूज़र रिस्पॉन्स इज एन इंस्ट्रक्शन इशूड बाय अ यूज़र बाय रिप्लाइंग अ क्वेश्चन डिस्प्लेड ऑन अ प्रोग्राम। यूज़र प्रोग्राम ने वो जो मैंने उसको सेटिंग्स बताई थी वो कर ली। फॉर एग्जांपल लाइक मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ किसी भी एप्लीकेशन की अपने कंप्यूटर के अंदर, मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है, आर यू श्योर, यस, वुड यू लाइक टू अलाउ दिस ऐप टू हैव एन एक्सेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स, मैं कहता हूँ यस, और एक्सेस ऑफ कैमरा, मैं कहता हूँ यस, दिस। तो वो मेरे सामने जो एक रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यूरी आ रही है, और उस क्यूरी की बेस के ऊपर जो मेरा रिस्पॉन्स जा रहा होता है वो बेसिकली यूज़र रिस्पॉन्स आ जाता है। सबसे पहले प्रोग्राम ने खुद से क्या करना है, फिर प्रोग्राम को हमने क्या बताना है, और तीसरा प्रोग्राम ने जो हमसे पूछा है हमने उसको क्या दी है। ये तीनों चीज़ें बेसिकली हमारी इनपुट में आ जाती हैं। An input device is a hardware component that allows user to enter the data and instructions into the computer. Obviously, एक डिवाइस होगी, कोई ना कोई फिजिकल डिवाइस होगी जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को कोई डाटा इंसर्ट करवा रहे होते हैं। कंप्यूटर को जब कभी भी बात करें कंप्यूटर की, तो यहाँ पर बात हम लोग किस चीज़ की करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारे प्रोसेसर की। प्रोसेसर को जो चीज़ चाहिए होगी अपनी उस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए डाटा को, तो वो जो हमारे पास डाटा आ रहा होगा वो हमारा इनपुट डिवाइस से आ रहा होता है। द वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज़ बेसिकली अ कीबोर्ड। एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज़ वेरी मच वेल अवेयर ऑफ दैट, यू आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ द कीज़। इसमें कितनी कीज़ यूज़ हो रही होती हैं, कैसी यूज़ होती हैं, उनकी क्या फंक्शनलिटीज़ हैं, न्यूमेरिक पैड क्या होता है, फंक्शनल कीज़ क्या होती हैं, इसके अलावा शॉर्ट कीज़ क्या होती हैं, एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू हैज़ यूज्ड समहाउ इन सम वेज दीज डिफरेंट कीज़। एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर राउंड अबाउट देयर आर 101 to 105 कीज़। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। न्यूमेरिक कीपैड भी होता है और कुछ में नहीं होता, कि जहाँ से हम डिजिटल कह रहा हूँ, जहाँ से हम डिजिट्स एंटर कर सकते हैं, तो वो बेसिकली हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है। एंड देन देयर कम्स द फंक्शनल कीज़। फंक्शनल कीज़ में हमारे पास कंट्रोल कीज़ आ जाती हैं, आल्ट कीज़ आ जाती हैं, एरो कीज़ आ जाती हैं, ये हमारे लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। विंडोज़ कीज़ में हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसी की जिसको हम प्रेस करें तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइक ये मैं प्रेस करता हूँ तो ये एक फंक्शन ओपन हो जाता है, हमारी विंडोज़ कीज़ के ज़रिए आता है। हमारी एप्लीकेशन कीज़ होती हैं, एप्लीकेशन कीज़ को आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। हमारी टॉगल कीज़ होती हैं, इसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये यहाँ से आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कीबोर्ड्स होते हैं, उसकी डिफाइंड जो बेसिक नेसेसिटी है वो ये है कि हमने उसको एज अ टाइप राइटिंग के तौर के ऊपर यूज़ करना है। और ये आपको पता है कि ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम टाइप राइटर्स जो थे वो उनके ऊपर बेसिक कीज़ होती थी, स्पेस, डॉट, अल्फ़ान्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स, और उधर से टाइप किया जाता और उसको ही कन्वर्ट किया गया हमारे पास कीबोर्ड के अंदर, जो कि डिजिटल राइटिंग के लिए यूज़ होता था। जो हमारा टाइप राइटर था वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर था एक तरह से। हम लोग प्रिंटर्स की भी जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट में ये होता है कि जिसमें हमारा जो जिस चीज़ से हम लिख रहे हैं या कर रहे हैं वो डायरेक्टली जाके पेपर के साथ स्ट्राइक कर रही होती है, और नॉन इम्पैक्ट में वो नहीं कर रही होती। तो बेसिकली जो कीबोर्ड्स ओल्ड टाइप राइटर्स होते थे हमारे, तो ओल्ड टाइप राइटर्स के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता था कि हम लोग जो है वो टाइपिंग हम लोग कर रहे होते थे, एंड उन टाइपिंग के अंदर हमारा जो कंप्यूटर था उसके कीबोर्ड्स जो थे, जो टाइप राइटर था उसकी कीबोर्ड्स जो थे, उसकी कीज़ को जब हम प्रेस करते थे तो वो जाके पेपर्स के साथ स्ट्राइक करती थी। जबकि अब हमारे पास डिजिटल कीबोर्ड्स आ चुके हैं जिनको हम लोग जब प्रेस कर रहे होते हैं तो आफ्टर दैट वो हमें एक
डिजिटल इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर अब हमारे पास आ जाता है इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट जब हम टाइप राइटिंग कुछ कर रहे होते हैं और उस राइटिंग के दौरान हमें आइडिया नहीं होता कि हमारा कर्सर कहाँ है, तो हम इंसर्ट का बटन दबाएं तो जहाँ पर हमारा कर्सर होगा वो सामने आ जाएगा। इस कर्सर को अगर हम किसी एक पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं और उस कर्सर को वहाँ पर जाके हम दोबारा इंसर्ट का बटन दबाते हैं तो हम वहाँ से राइटिंग स्टार्ट कर पा रहे होते हैं। ऑब्वियसली कीबोर्ड्स आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कीबोर्ड्स हैं वो ऑब्वियसली वायर्ड एंड वायरलेस कीबोर्ड्स हैं। वायर्ड की अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वायरलेस की अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं। यू पीपल आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस कीबोर्ड्स। यूएसबी पोर्ट्स होती हैं, कीबोर्ड पोर्ट्स होती हैं, आजकल सारी की सारी यूएसबी पोर्ट्स होती हैं जो हमारे बल्कि मैं तो कहता हूँ एक तीसरी टाइप भी होती है जो कि एम्बेडेड कीबोर्ड्स होते हैं। एम्बेडेड कीबोर्ड्स मतलब मेरे लैपटॉप में अभी कीबोर्ड लगा हुआ है, ये एम्बेडेड कीबोर्ड है जो कि कीबोर्ड पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट हुआ है, ठीक है। फिर यूएसबी पोर्ट आ जाते हैं जो उसके ज़रिए होते हैं, जो एक्सटर्नल कीबोर्ड्स होते हैं। एंड देन जो वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं वो हमारे ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट हुए होते हैं। दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। वायर्ड कीबोर्ड्स में ऑब्वियसली रिस्पॉन्स टाइम ज़रा अच्छा होता है और वायरलेस कीबोर्ड के अंदर ऑब्वियसली हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा होता है वो मोबिलिटी का होता है। अब हमारे वायरलेस कीबोर्ड्स भी इतने एडवांस हो चुके हुए हैं कि जिनको हम क्वाइट ईजीली वायर्ड की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आ जाती हैं जिनमें हमारे पास लेटर्स एंड नंबर्स आ जाते हैं। ABC आ जाती है, 1 2 3 आ जाती है। और देन हमारे पास मॉडिफायर कीज़ होती हैं। मॉडिफायर कीज़ में शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल और ये सारे के सारे इनको शॉर्टकट्स के तौर के ऊपर यूज़ किया जाता है। जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V करके हम लोग असाइनमेंट बना रहे होते हैं। इनको हम शॉर्टकट्स के लिए मतलब ये दो कीज़ मिलकर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, इसलिए हम इनको मॉडिफायर कीज़ कह रहे होते हैं। जिस तरह जो एवोल्यूशन हुई कीबोर्ड्स के अंदर तो ऑब्वियसली इनकी लेआउट्स में भी चेंजिंग आनी शुरू हुई। तो वो जो लेआउट्स में चेंजिंग आ रही थी उसमें से तो पहली चेंज ये थी कि हमने जो अपना न्यूमेरिक कीपैड है उस कीपैड को किस अरेंजमेंट से रखना है। दो तरह की हैं, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। ये हमारे पास जो कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर में हमारे पास बॉटम टू टॉप गया और जो हमारे पास टेलीफोन थे उसमें टॉप टू बॉटम था। जो कैलकुलेटर स्टाइल है वो हमारे कंप्यूटर्स में आ गया और जो हमारा टेलीफोन स्टाइल है वो हमारी ATM मशीन्स में इंट्रोड्यूस हो गया। फंक्शन कीज़ की मैं बात की थी, पास में मैंने नहीं की थी। फंक्शन कीज़ की को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे कीबोर्ड के टॉप के ऊपर बहुत सारी फंक्शन F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, 11, 12 12 फंक्शन कीज़ हमारे पास मौजूद हैं। हर फंक्शन की डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। F1 से कोई एक फंक्शन होता है, F2 से कोई एक फंक्शन, F3 से मोस्टली F1 से हेल्प के लिए हम लोग जा रहे होते हैं। F2 से कंट्रोल और F2 अगर हम करें तो हम किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। Alt और F4 करें तो हम लोग एप्लीकेशन को क्लोज कर पा रहे होते हैं। स्टार्टअप के ऊपर F10 और F12 दबा रहे हो तो हम लोग बूट मेन्यू में चले जाते हैं। F11 दबाएं तो फुल स्क्रीन में चले जा रहे होते हैं। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो कि हमारी ये फंक्शन कीज़ परफॉर्म कर रही होती हैं हमारे सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और टाइम सेविंग के लिए। देन ऑब्वियसली हमारे एरो कीज़ होते हैं। एरो कीज़ की बहुत सारी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। गेमर्स जो हैं उन लोगों के लिए दीज एरो कीज़ आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। AWSD एंड ये जो एरो कीज़ होती हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी अरेंजमेंट। और इवन दो के वो कीबोर्ड्स भी इस तरह के सिलेक्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर उनकी फिंगर की प्लेसमेंट सबसे बेहतर हो सके। तो ये एरर कीज़ या इनको कर्सर कीज़ कह रहे होते हैं जो कि डायरेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, टेक्स्ट में आगे पीछे जाने के लिए होती हैं। टीज़ एंड इन्वर्टेड टीज़ दो तरह के इनके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मेरे पास जो इस टाइम कंप्यूटर में यूज़ हुआ स्टाइल है वो दिस वन है, जिसको हाईलाइट किया गया मेरे लैपटॉप के ऊपर, ये वाला स्टाइल है। और आप लोगों के भी डिफरेंट स्टाइल हो रहे होंगे। देन हमारे पास आ जाता है अरेंजमेंट। आप लोग देख रहे होंगे हमारे लैपटॉप के ऊपर या यहाँ पर भी आपके सामने जो पिक्चर आई हुई है, लैपटॉप के ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स ABCDEF इस तरह नहीं हुई, डिफरेंट अरेंजमेंट है। अब ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, नंबर वन इसकी एक रीज़न है। नंबर टू, ये जो अरेंजमेंट्स के ऊपर मेरे पास तो जो कीबोर्ड है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखने के लिए। अगर मैं स्पेनिश लिखना चाहता हूँ तो अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट होंगे। अगर मैं क्या कहते हैं अरेबिक लिखना चाहता हूँ तो अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट होंगे। और डिफरेंट लैंग्वेजेस, अगर मैं जर्मन लिखना चाहता हूँ डिफरेंट होंगे, चाइनीज़ लिखना चाहता हूँ डिफरेंट होंगे। तो ऑब्वियसली एक तो हम यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए अपनी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं कि मेरे अल्फ़ाबेट्स मैं क्या टाइप करूँ उसकी जगह क्या आ जाए। जैसे हम लोग उर्दू लिख रहे होते हैं। जो सेकंड चीज़ है कि हमारे कीबोर्ड्स ही जेनेरिकली डिफरेंट होते हैं, जिसके अंदर हमारे टिपिकली इंग्लिश की बजाय हमारे डिफरेंट लैंग्वेज की इंग्लिश यूज़ की जाती है, उनके अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया जा रहा होता है। नंबर वन। नंबर टू, हमारा एक अरेंजमेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्विट्री अरेंजमेंट।
अब बेसिकली जो क्विटरी अरेंजमेंट होती है, ये हम लोगों ने जो कि सबसे ज़्यादा मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये हमारी क्वेट्री या क्विटरी क्वार्टी, डिफरेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये अरेंजमेंट होती है जिसको दी मोस्ट, इट्स नॉट दैट ऑप्टिमल, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो जो हमारे टाइप राइटर्स थे वो इस लिहाज से अरेंज थे, हमने वही टाइप राइटर्स को, उसी लेआउट को हम लोगों ने कॉपी किया हमारे लैपटॉप्स के कीबोर्ड्स के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो मोस्टली हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट इस तरह से की गई कि दोनों हाथों की फिंगर्स जो थी वो जब भी किसी अल्फ़ाबेट को रीच करना चाहें तो क्वाइट ईजीली कर सकें। मतलब जो हमारे, मतलब मेरा नाम है उस्मान, तो उस्मान में यू के बाद जो एस है, तो यू और एस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैं क्वाइट इजीली अपने हाथ से कंट्रोल कर सकूं और अरेंजमेंट को ओके कर सकूं, मतलब टाइप कर सकूं जितनी जल्दी से। लेकिन ये जो कीबोर्ड है इसकी वजह से फटीग बहुत ज़्यादा होती है। फटीग से मुराद ये होता है कि दर्द होनी शुरू हो जाती है। यू आर आफ्टर सम टाइम हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको लॉन्गर पीरियड के लिए लिखा जाए। तो सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन जो है मैं वो आगे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक बेसिकली ये टिपिकल हमारा तरीकाकार है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे ट्रेंड टाइपिस्ट हैं ये उनके लिए नहीं है, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स एज वेल। तो हम लोग इस अरेंजमेंट से इसको नहीं लिखते। हमारे पास जितने भी कीबोर्ड्स हैं वो क्विटरी में आ रहे होते हैं। देन हमारे पास एक कीबोर्ड है जिसको हम डोवाक कह रहे होते हैं। मैं पहले आपको ये कीबोर्ड दिखाता हूँ। इस कीबोर्ड को आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च के बाद इसको डिज़ाइन किया गया। ये कीबोर्ड क्या कहता है कि इसमें साइंटिस्ट ने और जो हैं रिसर्चर्स, उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे हमारे जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को उन्होंने पूरी की पूरी डिक्शनरी को उन्होंने खंगाला और उसने देखा कि एक अरेंजमेंट बनाई कि किस तरह जो मोस्टली वर्ड्स हैं वो आपस में क्लोज आते हैं। उनके ख्याल से AOEUI ये वर्ड्स बहुत क्लोजली आ रहे होते हैं। TN के साथ आता है, CR के साथ, मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर CR और GL ये करीब करीब होंगे, या T और N और S और H करीब करीब होंगे। उस बेस के ऊपर इन्होंने डोवाक कीबोर्ड बनाया, और जब उसकी रिजल्ट की तो उससे पता लगा कि 10 to 15% स्पीड में इन्हांसमेंट होती है, और आपके जो पेन हो रही होती है वो कम हो जाती है। राइटिंग के दौरान जो पेन होती है, फिंगर्स पेन, आपकी कलाइयों के अंदर जो दर्द होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली हम तमाम लोग जो हैं वो क्विटरी यूज़ करते हैं, उसकी आदत होगी है, बल्कि इतनी आदत होगी है कि हम मोबाइल के ऊपर भी अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो आंखें बंद करके कर पा रहे होते हैं, लैपटॉप के ऊपर तो ऑब्वियसली आंखें बंद करके कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये अडॉप्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। अच्छा, एक चीज़ अब जो मैंने एर्गोनॉमिक्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, और ये हमारे आज के लेक्चर की आखिरी टॉपिक है। एर्गोनॉमिक्स से मुराद क्या है कि आप जब भी किसी चीज़ को यूज़ करें, जब भी किसी को यूज़ करें, उसको उसकी प्रॉपर फिजिकल रिक्वायरमेंट के अंदर यूज़ करें। फिजिकल रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि मैं अभी आप लोगों के साथ फॉर एग्जाम्पल लाइक बैठा वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बड़ी एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ हूँ। अनकंफर्टेबल पोजीशन में इसलिए बैठा हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकॉर्ड द वीडियो इन अ प्लेस वेयर देयर वुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल साउंड। ठीक है, विदाउट फैन मुझे रिकॉर्ड करनी होती है, सो दैट इट वुड बिकम पॉसिबल फॉर यू टू इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स, और रात को रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली मैं एक ऐसी जगह के ऊपर बैठा हूँ जहाँ पर मेरे पास बैक सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, मेरे पास हैंड सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, मेरे कैमरे को सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, मेरे पास अच्छी लाइटिंग नहीं है, मैं अच्छे जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी जो आउटपुट होगी दैट वुड नॉट बी वेरी गुड, नंबर 1। नंबर 2, मुझे फिजिकल फटीग होगी, मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगा। आई वुड नॉट बी वेरी गुड, मेरी आउटपुट उतनी अच्छी नहीं होगी। इसका सोल्यूशन ये हमारे पास आ जाता है कि एर्गोनॉमिक्स हो, आपके पास एक प्रॉपर व्यूइंग एंगल हो, आपके पास राइटिंग एंगल हो, सिटिंग एंगल हो। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप राइटिंग कर रहे हैं, everything requires an ergonomics, everything, and that ergonomics is very important because it avoids you from repetitive strain energy. Repetitive strain energy basically क्या होती है कि एक ही काम आप बार बार किए जा रहे हैं। बार बार करने की वजह से क्या होता है कि आपको वो स्पेसिफिक जगह के ऊपर आपके इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है। मसलन मैं टाइपिंग करता हूँ और मेरे हाथों की पोजीशन बहुत गलत है, तो मेरी इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं व्यूइंग एंगल के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं यूं करके काम कर रहा हूँ तो मेरी गर्दन में इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। विद अगेन एंड अगेन जब मैं उस काम को कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन के अंदर उस बॉडी को यूज़ करूँगा जो कि ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, जो कि ऑर्गेनोमिक नहीं है, जो कि जिस तरीके से मुझे करना चाहिए मैं नहीं करूँगा, तो मेरी जो
आउटपुट होगी वो बहुत बुरी हो जाएगी एंड इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वर्क प्रॉपरली। तो बहुत सारे एर्गोनॉमिक्स डिज़ाइन है, हर इंसान अपने कंफर्टेबल लेवल के लिहाज से देख रहा होता है कि उसका एर्गोनॉमिक डिज़ाइन क्या है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस और सजेस्ट भी किए हैं। हम में से बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं कि जो जब भी कीबोर्ड लेते होते हैं या कोई लैपटॉप या कोई हार्डवेयर डिवाइस लेते हैं तो ये देखते हैं कि हाउ मच एर्गोनॉमिकल दैट वुड बी फॉर अस। लेकिन हमें ये देखना चाहिए सो दैट के, क्योंकि इस डिवाइस ने हमारे साथ अगेन एंड अगेन, मोबाइल फ़ोन लेते हैं ना तो उसकी फ़ील देखते हैं, तो सिमिलरली हम लोगों ने जब कोई कीबोर्ड भी सिलेक्ट करना हो, कोई हार्डवेयर डिवाइस जिसमें कीबोर्ड मौजूद होता है उसको भी सिलेक्ट करना हो, तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेलेक्ट सच वन कि जिसको लॉन्ग टर्म अगर हम यूज़ करें तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज फर्स्ट लेक्चर एंड आई नो कि इट वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू लर्न समथिंग न्यू and I hope so that you people had learned something new from me. Coming lectures would be more interesting for you people and I'll try to make it as interactive as I could with limited resources that I have so that it would become much interesting for you. That's all from my side. If there would be any question, give me a comment or discuss in Google Classroom or give me an email, तो हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे और we can discuss it in the Zoom class as well. Thank you so much. This is Usman and this was the very first lecture about input. Allah Hafiz.